أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولایت علی ابن ابی طالب صلوات والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تلبسوا الحق بالباطل ولا تكتموا الحق وانتم تعلمون صلوات بابا ذکر اور مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے بابا سے بلند تر صلوات. دعا ہوں خالق دو جہاں آپ سب کا اس مجلس اعظام میں چلایا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. بانیان نے واجب الاحترام بھائیوں نے جو اہتمام کیا بطفل محمد وآل محمد وہ اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. اس مجلس کا عزاداری کا اجر عظیم عطا فرمائے. مالک بانیان کی اور جو حاجات لے کے آپ ذکر مظلوم کربلا میں تشریف لے آئے ہیں مالک تمام کی حاجات کو پورا فرمائے. مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے بغاز بلند تر صلوات. اجازت اگر ہم لوگ شروع کی جائے. میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی جو آیت تلاوت کی ہے اس میں اللہ اپنے بندوں کو حق کے متعلق حکم دے رہا ہے. انشاءاللہ آپ دعا فرمائیں گے جو حکم اللہ دے اس پہ عمل کرنا کتنا واجب ہو جاتا ہے کیونکہ یہ حکم بندے کا نہیں خدا کا ہے, مخلوق کا نہیں خالق کا ہے. تو جو معصوم نے ترجمہ فرمایا ہے وہ کرنے سے پہلے ایک جملہ کہہ کے آپ کی توجہ لیتے ہیں اور بات کو شروع کر دیتے ہیں. پہلا جملہ یہ قیمتی جملہ حمد ہے اس اللہ کی. کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے حمد؟ بس سبحان اللہ کہ آپ نے تسبیح کرنی اور پہلے جملے سے انشاءاللہ مجلس کا ماحول بن جائے گا. حمد ہے اس اللہ کی کہ جو کائنات بنا کے متکبر نہیں ہوا مگر علی کے سجدے سے متکبر ہو گیا. آئے ہائے ہائے سلامت رہے. جملہ سے میں نے بڑا قابل غور کہا تھا جو کائنات بنا کے متکبر نہیں ہوا علی کے ایک سجدے سے متکبر ہو کے کہتا ہے فرشتوں آج میں متکبر ہو گیا علی نے مجھے سجدہ کر دیا. تو پھر ایک جملہ کہہ کے مجلس کا آغاز کرنے لگا جس کا ایک سجدہ اللہ کو متکبر کر دے اسی کو زیبا ہے کہ اس کے ایک ہاتھ کی ضربت ثقلین کی عبادتوں سے بھاری ہو گئے. السلام آپ نے تھوڑا سا مجلس والا ماحول بنانا تو پھر مرتضیٰ نے بات کو شروع کرنا ہے. شاہ جی میں بڑی پیاری بات کرنے لگا ہوں. اسی کو زیبا ہے کہ جس کے ایک ہاتھ کی ضربت کس کی عبادتوں سے ثقلین کی عبادتوں سے. انشاءاللہ پہلے جملے پہ ہی پتا چل جائے گا اپنے کون ہیں اور اپنوں میں پرائے کون کون بیٹھے ہیں. اسی جملے سے پتا چل جائے گا اے جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادتوں سے بھاری ہو. بھارت سے قرآن سے پوچھا گیا یہ ثقلین کیا ہے؟ میں نے چھٹا امام فرما دیا واللہ ہے انا من الثقلین میں صادق بھی تو ثقلین میں ہوں. آئے ہائے اللہ جانے علی کی ضربت کتنی باکمال ہے. میرا مولا صادق بھی ثقلین میں ہے. تو پھر مرتضی جملہ کہہ کے مجلس کا آغاز کرے جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادتوں سے بھاری ہو اس کا نام نماز میں آئے باطل
यार आप गौर नहीं फरमा रहे। एक तरफ कहते हैं अली के एक हाथ की ज़रबत सकलैन की इबादतों से भारी है, आलमीन की इबादत एक तरफ, अली के एक हाथ की ज़रबत शादी एक तरफ। तो जिसकी एक ज़रबत कायनात की इबादतों से भारी हो जाए, उस अली का नाम नमाज में आने से इबादत की मेराज हो जाती है। सलामत रहे। तो फिर ये और हक बनता है कि आप जब अली का नाम आए तो खुश होना चाहिए। क्यों? अली का नाम लेना सवाब नहीं, इबादत है। और ये भी मौला का फरमान सुनते जाए, फिर आयत का तर्जमा करते हैं। सरकार फरमाते हैं अली दौलत से नहीं, सयादत से नहीं, बड़े खानदान से नहीं, मेरे इमाम फरमाते हैं अली हमेशा ज़र्फ़ों के मुताबिक अता होता है। जिसका जितना ज़र्फ़ होता है उसे उतना अली अता कर दिया जाता। अली ज़र्फ़ के मुताबिक अता होता है। तो यही तो मेरे इमाम से किसी ने आके सवाल कर दिया था, तो मौला अगर मैं या अली कहूं जो कि सरकार ने कहा इबादत है, तो मुझे कितना सवाब मिलेगा? सरकार चेहरा देख के कहते तुझे एक कुरान के खत्म का सवाब मिलेगा। दूसरा कहता मुझे कितना मिलेगा? का तुझे 60 का मिलेगा। तीसरा आया का तुझे 70 का मिलेगा। चौथा आया उसे कहा 700 का मिलेगा। पांचवा आया का 7,000 का, 70,000 तक की रिवायत है। का मौला ये वजह क्या है? उसे 1 कहा, उसे 7 कहा, उसे 70 कहा, इसे 700 कहा, उसे 7,000, 70,000 तक की रिवायत का। जिसका जितना ज़र्फ़ था उतना बता दिया। अली दौलत से नहीं, ज़र्फ़ों से। तो फिर ज़र्फ़ को बुलंद रखना चाहिए। जब अली पढ़ा जाए ज़र्फ़ बुलंद होने चाहिए। बस इसीलिए अल्लाह कुरान में इरशाद फरमा रहा है ला तलबिसुल हक़ बिल बातिल। अल्लाह करे सारों को बात अच्छी लगे। अल्लाह कहता है खबरदार, खबरदार, हक को बातिल का लिबास न पहनाना। हाय हाय, अब जैसे आवाज आई अब सारे बोलेंगे मेरे साथ। मैंने रिवायत का बुजुर्ग सहारा नहीं लिया, कुरान की आयत का सहारा है। कहते हक को बातिल का लिबास न पहनाना। अल्लाह भी जानता था इस दौर में कुछ आएंगे जो हक को बातिल का लिबास पहनाएंगे। अल्लाह कहता खबरदार, हक को बातिल का लिबास। अच्छा ये मिंबर आपको नजर आ रहा है? आपने इस मिंबर की तरफ देखना है। मैं आपको एक कुरान का ये तफसीर बताता हूं जो इमदाद काज़मी साहब ने की है। इमदाद का 3 कुरान चलते हैं पाकिस्तान में। चौथा रज़ीशान जवादी साहब का आ गया, मकबूल साहब है, फरमान साहब है, इमदाद काज़मी। इमदाद काज़मी साहब ने अपने कुरान के हाशिए पे लिखा इस आयत के बारे में, जिसे ये मिंबर नजर आ रहा है वो तो जरूर बोलेगा ला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल। इमदाद काज़मी साहब कहते हैं मौला कहना ये कुरान कहना ये चाह रहा है कि हक की जगह किसी बातिल को ना बिठाना। अल्लाह मेरे बंदे को शादी बात अच्छी लगे, हक की जगह किसी बातिल को नहीं। अभी तक बात समझ नहीं आई। जब सरकार मुस्तफा ने बज़ाहिर दुनिया से बंदा किया, एक साहिब आए जिन्होंने इहतराम रिसालत में रसूल वाली जगह को छोड़ के नीचे बैठना शुरू किया। उसके बाद दूसरा आया, उसने एक कदम और छोड़ा। तीसरा आया, उसने तीसरे पे आके अपना कदम रखा। जब मेरे मौला अली का दौर आया ना, सारे कहते अली खड़े होके देंगे क्योंकि सीढ़ियां खत्म हो गई। अली ने पहले पे भी कदम रखा है, दूसरे पे भी रखा है, तीसरे पे रख के जब मुस्तफा की जगह पे बैठे और मुस्कुरा के कहा आज हक अपनी असली जगह पे आ गया। आप सलामत रहे, गौर फरमा रहे कि नहीं? मैं रिवायत का सहारा नहीं लूंगा। आगे जितनी भी बनी आयाते कुरानी पता चला जो हक की जगह किसी बातिल को। ये मिंबर आप बताएं, जब कराची वाले नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? ये मिंबर किसके लिए है? 14 के लिए। तो जो 14 की जगह किसी और को बिठा दे, हाय हाय, बातिल भी है, गद्दार भी है। तो
तो गद्दारों के साथ तो जो होता है वो आपको पता क्या होना चाहिए। हाय हाय, गद्दारों पे कल भी लानत थी। बाकी बात मैं कुरान से दिखाऊंगा क्या क्या लानत अल्लाह ने डाली है। बस आगे अल्लाह कह रहा है, पहले कहता अल्लाह ताला ने सुबह हक का लिबास दे ले, अल्लाह कहता खबरदार हक की जगह बातिल को न बिठाना। ला तक्तुमुल हक्का, और अल्लाह कहता खबरदार हक छुपाना भी ना। हाय हाय, अल्लाह को पता था लोग हक छुपाएंगे, मौलवियों के डर से हक छुपाएंगे। अल्लाह ने वादे तौर पे कह दिया हम तुम तालमून, और तुम्हें पता है कि हक क्या है। अली हक, अली 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 नारे मैंने रिवायत नहीं पढ़ी, कुरान की अगवान तुम तालमून। हर वो जो कुरान पढ़ेगा कुरान उसे कह रहा तुम्हें पता है कि हक। अच्छा, मैंने अभी तक हदीस नहीं सुनाई ना सुनाऊंगा अभी। पहले सारे बताओ हक कौन है? सारों का कीदा भाईजान हक अली है। तो जो अब कुरान की आयत पे नहीं बोलेगा उसे इंशाअल्लाह कुरान की बात पड़ेगी। कुरान तो बता जाओ अल हक वसाकल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका। कुरान कहता हक आया बातिल अली हक है। अली के आने से बातिल मिटता है, नमाज बातिल नहीं होती है। कुरान की तो मानो ना, मैं तो मोमिन की बात मान रहा हूँ। थोड़ी सी बात बोल दी आपने। अली और वली अल्लाह, अली और वली अल्लाह। नमाज बातिल है, हमारे मरकज के आगे दूसरा निजाम बातिल है। अरे इब्लीस के पोते, तुझे क्या पता जलवाए विलायत क्या है? नमाज तो कुछ भी नहीं, अली के बगैर तो पूरा इस्लाम बातिल है। अल्लाह ने वैसे कुरान में आपने नारा लगाया, खड़े होकर शेर रुबाई पढ़ी। अल्लाह कुरान में भी कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिऊ खुतवातिश शैतान। अल्लाह कहता है ईमान वालों शैतान के नक्शे कदम पे ना चलना। हाय 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 हाय, रिवायत में कुरान की आयत है। अल्लाह कह भी किसे रहा है? या अय्युहल्लज़ीना, ईमान वालों से। अब यहाँ मुझे चोली में बताना पड़ेगा तो कुरान भाई मौसम के ईमान क्या है? ईमान कल भी अली था, आज भी अली है। तो ईमान कुल कौन है? मेरा मौला अली। तो अल्लाह फिर किसे कह रहा है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, शैतान के नक्शे कदम पे ना चलना। मैं कुरान से शैतान का नक्शे कदम दिखाता हूं, देखो अगली आयतों पे होता क्या। जब अल्लाह ने शैतान से कहा ना करो आदम को सजदा, नहीं किया, रजीम हो गया, लानती हो गया। अल्लाह ने कहा चल निकल। जब जाने लगा ना अल्लाह से कहा मैं देख लूंगा। क्या करेगा? कहा जिस आदम की वजह से मुझे जन्नत से निकाला ना, इसकी औलाद के पल्ले कख नहीं छोड़ूंगा। क्या करेगा? कुरान पढ़ के देखो। कहता माल में भी शरीक हो जाऊंगा, औलाद में भी शरीक हो जाऊंगा। अगले जुमले में हर कोई बोलेगा मैं कहता पता करेगा क्या? जाता हुआ शैतान रोक के अल्लाह से जो कहा, अल्लाह ने सूरह आराफ की आयत बना के भेजा ला अक़ुदन्ना लहुम सिरातक मुस्तक़ीम। अल्लाह से कहता है उस रास्ते पे बैठ जाऊंगा जो सिराते मुस्तकीम तक जाता है। शैतान का काम है सिराते मुस्तकीम से रोकना। सिराते मुस्तकीम अली है। कुरान ने मोहर लगा के कहा जो जब जहां जिस वक्त भी अली तक जाने से रोके शैतान है। सलामत रहे, मैं तो कुरान की बात कर रहा हूँ। सूरह आराफ मेरे मशवरे से तो नहीं आएगी, हाफिज साहब के बेटे में नारा लगवाना था। शैतान का काम है अली तक जाने से रोकना। व अंतुम तालमून, और तुम्हें पता है कि हक क्या है, कौन है। अच्छा हक कौन है? अच्छा पीछे वाले लगता भाई सारे नाराज हैं। हक कौन है? अली। अली का नाम लेना 70,000 कुरान के खत्म का भी सवाब है, या अली कहना इबादत है। तो फिर हक कौन है? अली।
जब हक अली है, अब कुरान की दूसरी आयत पढ़ता हूं, हत्ता जाओ अल हक वज़हरा अम्रुल्लाह वहुम कारिहून। अल्लाह कहता है हक आया, अल्लाह का अमर जाहिर हो गया है। वहुम कारिहून, और लोग तो नहीं चाहते थे कि हक आए, कुरान कहता हमने भेजा। लोग आज भी चाहते हैं हक की बात ना हो। शाह साहब लोग आज भी रोक रहे हैं, मिंबरों से रोक रहे हैं कि अली की बात ना करो, फुला की कर लो, फुला की करो। और भाई बात उसकी करें जिसने कब्र में आना है। हाय हाय, अगर मौलवी कब्र में आता है तो मौलवी की कर लेते हैं, अगर मौला आते हैं तो मौला की कर लेते हैं। हम तो वही बात करेंगे ना जो कुरान के मुताबिक होगी। हक आया, अल्लाह का अमर जाहिर हो गया। मैंने कुरान से पूछा, कुरान तू बता अल्लाह का अमर क्या है? सूरह यासीन पुकारी, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शयअन अन यकूला लहु कुन फयकून। का कुन कह के कायनात बनाना नहीं अल्लाह का अमर है। यार कुरान की तो मान लो, मिल गए। देखे साहिबान के राजी अहले इलाका, हक के आने से अल्लाह का अम्र जाहिर हुआ। हक कौन है? अल्लाह का अम्र क्या है? कुन कह के कायनात बनाना अल्लाह का अम्र है। अल्लाह ने कुन कह के कायनात बनाई। कुन जाहिर हुआ हक से, हक अली है। अभी भी बात समझ नहीं आई, इसलिए तो सरकार ने फरमाया था वल्लाह नहनु अम्रुन बैनल काफ़िर वन्नूर, हम 14 ही अल्लाह के कुन के दरमियान वाला अम्र है। तो फिर यकीन कर लो, कुन कह के कायनात बनाना अल्लाह का अम्र है। कुन का इरादा अल्लाह का होगा, कुन कहने वाला अली यार ये तो रिवायत वाली बात ही नहीं, ये तो कुरान की आयत है। हक आया, अल्लाह का अमर, कायनात बनाई कुन कह के। मैं रिवायत पढ़ूं तो आपका काम है उठ के खड़े हो जाना, क्यों पढ़ी है? अगर आयत कुरान हो फिर तो सुभान अल्लाह बनती है ना। अब कुरान शिया सुन्नी तो नहीं है कराची वालों, भाई कुरान शिया सुन्नी नहीं है। हक के आने से अल्लाह का अमर जाहिर हुआ। अमर यह है कुन कह के कायनात बनाता है। आदम किससे बना? कौन से? अल्लाह का अम्र है कौन, आदम बना है कौन से। इसलिए तो अल्लाह ने कहा था शैतान लानती, तूने उसे सजदा नहीं किया जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया है। यार अल्लाह तो हाथ रखता नहीं, फिर ये बनाने वाला कौन है? नहीं फरमाए यार, सादी बातों पे भी बोलना चाहिए। चले चले, कायनात बनाई कुन कह के, आसमान बनाए कुन कह के, जमीन बनाई कुन कह के, तो कुन का मजहर कौन है? तो फिर कायनात बनाने वाला कौन है? या तो फिर नहजुल बलागा से खुतबे निकालो, वरना मानना पड़ेगा। अली कहते हैं इज्जत खुदा की कसम, आसमानों को बगैर सतूनों के खड़ा करने वाला ही मैं अली इब्न अबी तालिब। अली मौला ये नहीं, यहां इसके मुकाबले में रिवायत नहीं पढ़ूंगा, आयत पढ़ूंगा। सरकार फरमाते हैं नहजुल बलागा में, आसमानों को बगैर सतूनों के खड़ा करने वाला मैं अली इब्न अबी तालिब हूं। आसमान बनाने वाला मेरा मौला अली है। अब फिर सूरह आराफ की तरफ आओ, अल्लाह कयामत का तज़किरा करते हुए कह रहे हैं वस्समावातु मतवियाओ तुम बेयमीन ही, कि जब कयामत आएगी अल्लाह आसमानों को अपने दाएं हाथ से लपेट लेगा। आपकी जिंदगी हो अगर अल्लाह का मौसम अगर अल्लाह का दाया है फिर बाया भी होगा। अल्लाह के दाएं बाएं वाले चक्करों में आता ही नहीं, तो फिर ये लपेटने वाला कौन है? मेरे इमाम कहते हैं ये वही आता है जिसने बगैर सतूनों के बिछाया। अपनी जिंदगी हो
قرآن شیعہ سنی نہیں ہے تو میں آپ کو ایک اور آیت سناتا ہوں. وَهُوَ الَّذِي اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ. اللہ کہتا ہے اللہ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ خلق کیا ہے. یار یہ حق کون ہے؟ میں نے ابھی تک حدیث نہیں سنائی، میں سادات المومنین کی زبان پہ اعتبار کرتے ہوئے چل رہا ہوں. حق ہے علی مولا. چلے ابھی دیکھ لیتے ہیں. قرآن کی آیتوں پہ بولنا ہر ایک کی بس کی بات ہی نہیں ہوتی. حدیث پہ تو سارے بولتے ہیں سبحان اللہ کر دیتے ہیں. قرآن کی آیت پہ بولو، شیعہ سنی ہے جو بھی ہے وہ قرآن کی آیت پہ ضرور بولے گا. قرآن تو بتا تیرے نزدیک حق کیا ہے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے جاءت سکرۃ الموت بالحق. اللہ کہتا ہے آتی ہے موت حق کے ساتھ. اور نہیں فرما رہے یار، میں روایتوں کا سہارا نہیں لے رہا، بزرگ قرآن کی آیات ہے. آتی ہے موت کس کے ساتھ؟ موت کے ساتھ کون آتا ہے؟ حق کون ہے؟ علی ہے. پتہ چلا موت کے ساتھ علی آتے ہیں. چلو جنہیں مشکل ہوتی ہے اس کو آسان کر دیتا ہوں. موت مؤنث ہے، حق مذکر ہے. لفظ نہیں لیا آپ نے. موت آتی ہے، موت میں تے تانیث کی ہے. موت مؤنث ہے، حق مذکر ہے، اور مذکر استعمال ہوتا ہے مرد کے لیے. ابھی تک سمجھ نہیں آئی. موت کے ساتھ کوئی مرد آتا ہے، اس لیے تو رسول نے کہا تھا کل علم سے دونگا جو مرد ہوگا. اب سلامت رہے. کل شاہ جی علم اسے دوں گا جو مانگ رہے تھے. اچھا ویسے حدیث بڑی کمال کی ہے. علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا. نہیں آپ نے غور نہیں فرمایا. اور بھائی علم ملا کسے؟ اس پہ میرے والد صاحب نے نا ابھی ریسنٹلی ایام اعزاء میں جو محرم میں راول پنڈی میں پڑھا اس میں انہوں نے بڑی بحث کی ہے، استثناء کی بحث. وہ مشکل باتیں حافظ صاحب سے سنے، آسان مجھ سے سن لے جناب. میں آسان بتا دیتا ہوں. کسی بھی چیز کی نفی پہلے ہو، اس بات بعد میں، درمیان میں آئے اللہ آتا ہے استثناء کے لیے. بس سادہ سی بات، مشکل بات کو میں نے اتنا آسان کر دیا. اللہ اپنے بعد والے کو منواتا ہے، اپنے سے پہلے والے کو مٹاتا ہے. یہ سے کہتے ہیں شارٹ اینڈ شارپ اس کی تشریح. اللہ اپنے بعد والے کو منوائے گا، اپنے سے پہلے والے کو مٹائے گا. مثلا لا الہ الا اللہ، اللہ کے بعد اللہ ہے. اللہ نے اللہ کو منوا کے کہہ دیا اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. اب جس کا ہاتھ نیچے ہاتھ ہوگا، اللہ نے بتایا اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں. اسی پیغام میں کہتا لا فتح الا علی. آپ نے غور فرما لیا. لا فتح تو اللہ نے اپنے بعد والے کو منوا کے پہلے والوں کو مٹا کے کہا علی کے علاوہ کوئی مرد. اور بھائی مردوں میں کہہ رہا ہوں، کراچی کے مردوں میں کہہ رہا ہوں، علی کے علاوہ کوئی مرد ہے ہی نہیں. تو علم کسے دوں گا؟ مرد کو. چلے اگلے جملے پہ دیکھ لیتے کس بندے کو بات اچھی لگی ہے. علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا. علم ملا میرے مولا علی کو. ایک صاحب آئے جن کا نام میں بھول جاتا ہوں، جب آئے نا آگے کہتے یہ کیا کہہ دیا کہ مرد فقط علی ہے، علی کے علاوہ کوئی مرد نہیں. آگے سے کہتا میری تین بیوی ہے، تیرا بچہ مصطفیٰ کہتا میں کہ تیری ماں تو بجاؤں گے. ماں تو بجاؤں گے. یاد رہا ان الفتح کل الفتح من قال فی قلبہ بلا یبغی ابن ابی طالب. مصطفیٰ کہتے ہیں مرد ہوتا ہی وہی ہے جس کے دل میں علی کی ولایت ہے.
میں علی کی ولایت ہے وہ مرد ہوتا ہے. سرکار فرماتے ہیں جو ہمارا دشمن اور ہمارا بغض رکھنے والا ہے قد لمبا بھی ہونا مزاج زنانہ ہوتا ہے. آپ سلامت رہے, آپ سلامت رہے. تو پھر میں نے شروع کیا تھا قرآن کی آیت سے, جاءت سکرات الموت بالحق, آتی ہے موت کس کے ساتھ؟ تو حق کون ہے؟ چلے اور تو کوئی دیکھے نہ دیکھے, وہ کہتے ہیں جائیں دائیں بائیں دو فرشتے کھڑے ہوتے ہیں. اچھا اس کا نام رتید ہے, اس کا نام عتید ہے. اب ان دونوں کا نام مجھے پتا نہیں کہ کیا ہے. یہ ریکارڈ کر رہے ہیں کہ کس بندے نے سبحان اللہ کی, کس نے نہیں کی. اب یہ نوٹ کر رہے ہیں, بعد میں بالیوں کو بتائیں گے بھائی وہ بھی بولا تھا, وہ بھی بولا تھا, اس کے چہرے پہ شکن تھا, یہ سارا کچھ کریں گے نا. بڑی سادی سی بات, مر جانا موت ہے, بغیر مقصد کے مر جانا ہلاکت ہے, مر کے بھی نہ مرنا شہادت ہے. اب دیکھنا کسی بندے کا ہاتھ نیچے تو نہیں رہ گیا, بغیر مقصد کے مر جانا ہلاکت ہے. اب پتا چلا کسی نے کہا تھا اگر علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا. پتا چلا جس کے پاس علی نہیں وہ کل بھی ہلاک تھا, آج بھی ہلاک ہے. قسم خدا کی ہر وہ شخص پاک ہو جاتا. یہ کس نے کہا مورخ سے پوچھئے علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. بھائی جس نے بھی کہا ہمیں پتا نہیں, لیکن یہ پکا پتا ہے جس کے پاس علی نہ ہو وہ ہلاک ہوتا ہے. ہاں جی, جس کے پاس علی نہیں وہ کل بھی ہلاک تھا, وہ آج بھی ہلاک ہے. تو پھر موت کے ساتھ کون آتا ہے؟ حق. لو جی اگلے جملے میں آپ بندے چیک کرتے ہیں. اتنی بات کر کے مجھے پڑھتے ہوئے بھی آدھا گھنٹہ ہونے لگا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی مرتضی اب چیک کرے گا کہ کون بولتا ہے اور کون شک کرتا ہے. قرآن تو بتاؤ کیا کیا چیز حق ہے. میں نے تو ویسے آپ کو قرآن کیا ہے سنا دی, هو الذی خلق السماوات والارض بالحق. اللہ کہتا ہے جو آسمان اور زمین ہم نے حق کے ساتھ انہیں خلق کیا. پھر کہتا ہے بین السماوات والارض بالحق, اور جو زمین و آسمان کے درمیان ہے وہ سب کچھ حق کے. میں نے ابھی تک آپ کو حدیث نہیں سنائی کہ حق کون ہے. تگڑے ہو جاؤ. اللہ نے قرآن میں بھائی واضح طور پہ 4 حق بتایا. میری طرف دیکھیے گا, بات اچھی لگے تو مثلا 4 حق. احمد سارے میں تو اب آدھے سے زیادہ کراچی کے بندوں کے ناموں سے بھی واقف ہو گئے ہوں. 4 واضح حق بتائے گئے ہیں. باقی آپ کو زبانی آتے ہیں, لیکن میں 4 واضح قرآن سے دکھاتا ہوں. اللہ حق, رسول حق, قرآن حق, دین حق. یہ کتنے حق واضح طور پہ؟ 4. روایت نہیں, روایت ہو تو بے شک اٹھ کے کھڑے ہو جانا. قرآن کی آیت ہو بیٹھے بیٹھے سبحان اللہ کرنا. پہلا حق اللہ. اللہ قرآن میں اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں ذالک بأن اللہ هو الحق. اللہ کہتا ہے میں بھی حق ہوں. اکیلے بندے کو سلامت سمجھائے. ذالک بأن اللہ هو الحق, اللہ بھی حق ہے. روایتوں کا سہارا نہیں لینا. اللہ حق قرآن کیا ہے, انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا. اے رسول ہم نے تجھے حق کے ساتھ بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا ہے. سبحان اللہ. خدا کے لیے غور فرمائے, مومنین کے لیے بشیر ہے, منافقین کے لیے نذیر ہے. کون رسول؟ اللہ حق, رسول حق. وبالحق انزلناہ وبالحق نزل. کہ ہم نے قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا, یہ آیا بھی حق کے ساتھ ہے. سبحان اللہ. یار غور نہیں فرما رہے. کم از کم قرآن کی آیتوں میں تو سبحان اللہ بنتی ہے نا. وہ آج کل تو مسجد
جب ہمارے سیمنٹ کی بوری مانگے نا تو پھر بھی کہتے بولو سبحان اللہ. میں تو قرآن کی آیت میں کہہ رہا ہوں سبحان اللہ. اللہ حق، رسول حق، قرآن حق، دین حق. مردہ کبھی دفنانے گئے ہو؟ مردہ دفنا کے کندھے کندھے ہلا کے کیا کہتے ہو؟ ان الموت حق وصراط حق ومیزان حق وسوال منکر ونکیر حق. موت حق، حیات حق، صراط حق، میزان حق، جنت حق، دوزخ حق. ایک ایک آیت پڑھے تو مجھے 2 گھنٹے چاہیے. فرشتے حق، انبیاء حق، اللہ حق، رسول حق، قرآن حق، دین حق. یہ 14 حق سننے کے بعد مصطفیٰ نے کہا الحق مالی علی المال حق. حق علی کے ساتھ ہے. علی 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 نعرہ آپ سلامت رہی. یار میں نے تو روایتیں پڑھی نہیں، میں نے تو ساری آپ کو قرآن کی آیات سنائی ہے، اور دوسری وہ باتیں جو آپ خود کرتے ہو. موت حق، حیات حق، صراط حق، میزان حق، منکر حق، نکیر حق، جنت حق، دوزخ حق، اللہ حق، رسول حق، قرآن حق، دین حق. تو یہ پھر کس کے ساتھ ہے؟ اللہ حق ہے. کس کے ساتھ ہے؟ تب جس کا ہاتھ نیچے رہنا وہ مسلمان ہے نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے. اللہ جانے وہ کیا ہے. جب اللہ کا جب میں حق ہوں، مصطفیٰ کہتے حق علی کا ساتھ ہے، تو پھر آج کے بعد نہ کہنا علی کا ہے جہاں اللہ ہے. تو مسئلہ تو حل ہو گیا ہوگا. جہاں اللہ ہے وہاں، جہاں رسول ہے وہاں علی، جہاں قرآن وہاں. چلے آپ سے داد لینے کا میرا اپنا انداز ہے، میں اپنے انداز سے داد لیتا ہوں. جو بندہ اب تک نہیں بولا نا، 2-4 بندے میں نے تاڑے ہوئے جو مجھے ابھی تک داد نہیں دے رہے. انہیں میں نے پکڑنا بھائی خیریت تو ہے، میں یا روایتیں غلط پڑھ رہا ہوں یا آیتیں غلط پڑھ رہا ہوں. چپ کیوں بیٹھے ہو؟ اللہ حق ہے. کس کے ساتھ؟ علی کا نام ختم قرآن کا ثواب ہے. ایسی نہ 70,000 تک کی روایت ہے. اللہ حق علی کے ساتھ. سارے بولنا اللہ حق، رسول حق علی کے ساتھ، قرآن حق علی کے ساتھ، دین حق علی کے ساتھ، موت حق علی کے ساتھ. اب پتا چلا موت کے وقت کون آتا ہے. سبحان اللہ. صراط حق علی کے ساتھ، میزان حق علی کے ساتھ. یہ سارے حق کس کے ساتھ ہیں؟ علی کے ساتھ. پھر مصطفیٰ نے کہا اللہم آدر الحق ایسا محتار علی، پالنے والے حق کو ادھر پھینک دے گا. سبحان اللہ. نہیں، خدا کے لیے ساروں کو بولنا پڑے گا. آپ کی زندگی ہو شاہ آپ غور فرما رہے ہیں بھائی جان. آپ کی پہچان نہیں ہے. کل بولے تو لگتا ہے کہ قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان، اور ایمان یہ کہتا ہے میں ایجاد. اب سلامت رہے. یہ سارا کچھ کس کے ساتھ ہے؟ آگے مصطفیٰ نے کیا فرمایا؟ حق کو کہاں پھیر دے؟ جدھر جدھر، جہاں جہاں، جس جس جگہ. ہے اگلے جملے میں دیکھتا ہوں کتنے ظرف ہیں. جہاں یہ سارے ہوں گے وہاں علی نہیں، لیکن جہاں علی ہوں گے وہاں اللہ بھی ہوگا، وہاں رسول بھی ہوگا، وہاں قرآن بھی ہوگا. آیا دیکھنا کسی کا قرآن بھائی حق نہیں جب نہیں رہ گیا. جہاں علی ہوں گے اللہ بھی ہے، رسول بھی ہے، قرآن بھی ہے، دین بھی ہے. کراچی والوں، چولی والوں، اب سوچ سمجھ کر علی کا نام نماز سے نکالنا. علی گیا، اللہ بھی گیا، رسول بھی گیا، قرآن بھی گیا، دین بھی گیا. سلامت رہے. جب علی گیا، شیطان ہے نماز میں ملائے کہ علی کو نکالنے والے شیطان ہے مجسموں پہ لانا. اگر علی گیا
मैंने 4 सत्रों में क्लोज किया। जल्दी से मुसल्ले पे आके क्या करता है? अबे तू मुसल्ले पे आके क्या करता है? तुझ पे लानत है, तू अली को छोड़ के नमाज पढ़ता फाहिशा थी, ये जो तूने साबित कर दिया। तेरे बाप का कहीं निशान नहीं मिलता है, तुझ पे लानत। आप सलामत रहे जी। देखिए जो कुरान और हदीस जो कह रहा है, चले वैसे ये बात तो वाज़ेह है, हक कौन है? तो जहां अली होंगे वहां हक तो होगा ना। अब कोई भी जगह हो तो जहां अली है वहां हक। तो फिर अल्लाह तो कुरान में कह रहा है, खबरदार हक को छुपाना नहीं। मैं आपने गौर नहीं फरमाया। हाय 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 हाय। अब अल्लाह कह रहा हक को छुपाना है, तुम्हें पता भी है कि हक क्या है। चलो जिसे पहले नहीं पता था उसे आज तो पता चल गया हक कौन है। तो अल्लाह कह रहा है फिर हक छुपाना नहीं, वरना कुरान की आयत सूरह निसा की आयत फिट हो जाएगी। कुरान में अल्लाह कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू। अल्लाह कह रहा है ईमान वालों ईमान ले आओ। क्या की कसम, सलामत रहे ईमान वालों ईमान। यार मैं आपको अक्सर समझाता हूँ, सैयद सैयद हो जा, वो तो मेरे गले पड़ जाएगा। मुझे सैयद कह भी रहा है, फिर कह रहा सैयद हो जा। अल्लाह भी कह रहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों। अल्लाह ईमान वाला भी कह रहा है, फिर कह रहा है ईमान ले आओ। हमारे से कुरान से पूछा गया ये आयत किन के बारे में आई? मेरे इमाम कहते हैं आयत उनके बारे में आई जिन्होंने खतीब को बख्शन कहा, घर जाके मुकर गए। अली वालों ऐसे ना हो जाना, यहाँ इकरार करो, वाजिब है, बेशक वाजिब है। हाय लारी, चलो कम से कम मुझे इतनी खुशी है। वैसे मैं तो गफरान कहता हूँ पूरे कराची के इंचोली के बच्चे मेरे सामने बिठाओ ताकि ये नस्ल तैयार करे। ये नस्ल ठीक हो गई, आगे मुकस्सर कोई नहीं होगा। इस नस्ल को नहीं करना। छोटे छोटे बच्चे देखो ना, वो बाप कितना खुश है जो साथ अपने गोद में अपने बेटे को बिठा के बैठा है। बेटे को किसी ने कहा तो नहीं नारा लगा, इसी पे बात पे ये छोटे छोटे बच्चों को लेके आया करो, मजालिस में मजलिसों में लाया करो। जैसे आपने अपने बच्चों को गोद में बिठाया, मौला ने जिंदगी ने गोद में बिठाओ, ये नारे लगाएं, दरूद पढ़े, सलवाते पढ़े। क्यों? पता चलेगा बेटा बाप का जुज़ होता है, बेटा बाप का जुज़ होता है। बेटा नारा लगाएगा, जुज़ नारा लगाएगा, कुल का पता चल जाएगा। अब दुनिया वालों बताओ और जिसका बेटा कुल ईमान हो, अल्लाह जाने अली जुज़ है, अबू तालिब कुल है। अल्लाह अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फसल तबाह हो जाती है और अली अली ना करने से नस्ल तबाह हो जाती है। अज़मत जनाब मौला हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम बावाज़ बुलंद सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद मुहम्मद। गौर फरमा रहे कि नहीं फरमा रहे? तो फिर खबरदार शाजी, अल्लाह कह रहा है हक की जगह बातिल को नहीं बिठाना और हक को छुपाना भी नहीं। और अल्लाह ने साथ ये भी बता दिया मौत के साथ हक ही आएगा। तो फिर क्या करोगे जब हक साथ आएगा और उस हक को छुपाते रहे? और ये जाअत सकरातुल मौत बिल हक ज़ालिका मा कुंतु मिन्हु तहीद। आयत कह रही है ये वही हक है जिसे दुनिया में झुठलाते रहे हैं। क्यों? हक से पीछे ना होना, हक क्लियर। मौला का फरमान सुबह एक बात सुनाते हैं, फिर राजी रहना। सरकार फरमाते हैं जो बंदा बगैर शक के
दिलावर शाह अच्छा लगे तो बनता है कि सारे मेरे साथ बोले, बगैर शक के। सरकार अली अलैहिस्सलाम फरमाते जो अपने दिल में अली की विलायत को बसा लेता है, सरकार फरमाते हैं रिस्क देने हम खुद आ जाते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए वाकया सुनाता हूं आपको, नई बात सुनाते हैं, नई बात। पहले मैंने आपको एक वाकया सुनाया हुआ है, लेकिन आपको एक नया वाकया सुनाते हैं। ऐसे है कि इंशाल्लाह बंदा जो कहता है ना मैंने दाद नहीं देनी, इंशाल्लाह वो हाथ छुड़ा के दाद देगा। जियो जियो। मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम का एक चाहने वाला था, हर वक्त शाह ईरान था, ईरान का बादशाह था। जब भी कोई फैसला करने लगता ना 3 दफा कहता अली हक, अली हक, ताकि मैं हक के मुताबिक फैसला करूं। उसके ऊपर ना दुश्मनों ने यलगार की, हमला किया, चारों तरफ से उसका मुल्क घिर गया। परेशान होकर ना मेरे मौला अली से इस्तिगासा किया, मौला आपका चाहने वाला हूं, फैसले भी आपके हुक्म और शरीयत के मुताबिक करता हूं, दुश्मनों ने घेर लिया है कि नुसरत फरमाइए। कहता मैं सो गया। साहिब किताब ने लिखा बादशाह शायरान कहता है मैं सो गया। आपने हाथ देखने किसी के नीचे तो नहीं रहते। कहता है ख्वाब में ना मेरे मौला अली की मुझे ज़ियारत हुई। मेरे मौला ने कहा तुम हक के मुताबिक फैसला करता है, तूने हमें हक कहा, हम तेरे नासिर बन के आए हैं, तुझे फतह होगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, तुझे फतह होगी, तुझे फतह होगी। का मौला कोई ऐसी बात ही सुना जाए ताकि मैं याद रखूं। मेरे मौला अली ने ना उसे फारसी में एक शेर कहा। हाय हाय, अल्लाह करे अब हर एक बंदे को अच्छा लगे। फारसी हमारी भी बस इतनी होती है जितनी आपकी है, लेकिन शेर बड़ा कमाल का है। ज़ोहराए शेर शवद आब बपतौर ये दिल, असदुल्लाह गर रसद बमदद गौर ये दिल। हाय 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 हाय। भाई जितना मर्जी ही शेर क्यों ना हो, बंदा दलेर क्यों ना हो, जब सामने शेर को देखता है ना उसका दिल भी पिता पानी हो जाता है। अब ये आपने देखना, ये शेर ना उसे सुना, कहा ये शेर याद रखना। अच्छा मौला उठा, मैं खत्म करने लगा, जल्दी करने लगा, उठा ना। बड़ा खुश मौला ने बिशारत दी, कामयाब हो गया ना। जब कामयाब हुआ ना, शेर का पहला हिस्सा याद रहा, दूसरा भूल गया। बड़ा ही लुत्फ वाली बात है, दूसरा शेर ना भूल गया। उसने जितने दरबारी मौलवी थे ना, अब पता चला दरबारी और होते हैं मौला वाले। हाय हाय, गुफरान भाई जो डीसी की एक चाय की प्याली पे बिक जाए वो कौम के रहबर नहीं हो सकते। सच्ची बातें सारों को बुरी लगती है, हक वाली बात तो कोई सुनना ही नहीं चाहता ना। तो मौलवियों के खिलाफ बात ना करें। हो मौलवी हमारे सर का ताज है, जो मौला के फजाइल पढ़े वो ताज है, बाकी नहीं। मौला की फजीलत पढ़ो, मिंबर बना ही मोहम्मद वाले मोहम्मद के लिए है, बाकी तबलीग के लिए मेहराब रखा नहीं हुआ है। उस पे बातें करें हम, आप सलामत रहे। बिल्कुल सीधी सी बात। वो शेर भूल गया, उसने दरबारी मौलवियों को इकट्ठा किया। 15 साल से रोटियां खा रहे हो मुफ्त की, अली अलैहिस्सलाम ने मुझे शेर सुनाया, ज़ोहराए शेर शबद आप बलतबाता और ये दिल, दूसरा मैं भूल गया। अब वो कहते हमें क्या पता, जल्दी बताओ, मुफ्त की रोटियां खाते हो, मैं कत्ल कर दूंगा। उन्होंने तुम्हारे पास 3 दिन का वक्त है, इंशाअल्लाह हर बंदे का हाथ उठेगा जो मौला की इतनी फजीलत है इसमें। 3 दिन 2 दिन गुजरे, कुछ ना हुआ। अब बेचारे खुद परेशान कि हमारी गर्दनें जाती हैं। फिर मौलवी को पढ़े, फिर अलम के नीचे चला ही जाता ना। हाय 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 हाय। अच्छा मौलवी को भी पढ़े तो जाता तो अलम के नीचे है ना, कहीं और नहीं जा सकता। यमन में मेरे मौला का फरमान मौजूद है, यमन में एक फकीर था, यमन में एक फकीर था जो जनाब अली अलैहिस्सलाम पे नाम पे ना भीख मांगता था। और जब कोई उसे भीख ना देता ना, नजफ की तरह मुंह करके कहता, या अली तू मेरा अमीर है, मेरा मौला है, ये मुझसे भीख तो छुड़वा। हाय हाय, मुझसे भीख। उसने ना सदा लगाई अली के नाम पे भीख दो, वो किसी ने इनकार कर दिया। नजफ की तरह मुंह करके कहता है, या अली तेरा चाहने वाला हूं, मुझसे भीख छुड़वा, ये रोज रोज का मांगना मुझसे छुड़वा।
ये कह के अभी उसने हाथ नीचे ना किए ना कि मेरा मौला सामने। आपने गौर नहीं फरमाया, मौला इस पर अजर अजीम अता फरमाए। और सबसे पहले बोले मौला उसके सामने खड़े, पहचानता तो था नहीं। जो सरकार फरमाते हैं हमें देख ही वो सकता है जिसे हम चाहते हैं। ये मौला का फरमान है कि हमें देख ही जानी वो सकता है जिसके बारे में हम चाहते हैं। तो अब ये जहन से निकाल दो मुकद्दर कि कब्र में अली मिलेंगे। हाय हाय, अली मिलेंगे उसे जो विलायत अली को कायम कर रहा होगा। बता सलामत में जल्दी करने लगो। कहा मुझे जानते हो? कहता फकीर कहता नहीं जानता। कहा भी किससे मांग रहा था? कहा मैं तो अपने मौला से मांगता हूं। कहा मैं ही अली इब्ने अबी था। फौरन कदमों पे गिर गया, मौला मौला मौला। मैं कितना खुशकिस्मत हूं, अल्लाह के चेहरे की जियारत कर ली, किबरियाई का बदन देख लिया है। आप सलामत रहे, आपको सारा कुछ पता है, आप समझते हैं कि मैंने अल्लाह के चेहरे की जियारत की। अच्छा आगे से ना फकीर था, मिस्कीन था। जी मौला खैरियत कैसे आना हुआ? मेरे मौला से पूछता। साहिब किताब ने ना ब्रैकेट में ना लिखा है कि कैसे आना हुआ। अली अलैहिस्सलाम मुस्कुरा के कहते हैं तुझसे फकीरी छुड़वाने आया है। आप सलामत रहे। का तुझसे और चाहते हैं कि तुझे शाही अता करे। है मौला कदमों पे गिर गया। मौला आपने कह दिया हो गया। तो मौला मैं तो फकीर हूं। मेरे इमाम मुस्कुरा के कहते हैं चाहता हूं तुझे शाह ईरान बनाऊं। है यमन में, का तुझे शाह ईरान बनाऊं। का मौला मैं तो यमन में हूं, ईरान तो मैंने कभी देखा ही नहीं, फारस मैंने कभी देखा ही नहीं। का वहां शाह ईरान ने ऐलान किया है जो शेर का दूसरा हिस्सा बताएगा उसे आदि शाही अता करूंगा। हर बंदा मेरे साथ हो रहा, आपकी जिंदगी बदल, आप सलामत रहे। जो जहां जहां खड़ा है बैठा है, बिल्कुल सही खड़ा है बैठा है, वही से सुभान अल्लाह से जरूर करनी है। का आदि शाही है मौला। आदि शाही किस बात पे? का शेर पे, शेर के दूसरे हिस्से पे। का मौला वो शेर कौन सा है? कहता हाय 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 हाय, आप सलामत रहे। का वो दूसरा शेर क्या है? का मौला सारी बातें छोड़े, हम यमन से ईरान जाएंगे कैसे? अली इस्लाम मुस्कुरा के कहते हैं हम ईरान में हैं। लेकिन अगले जुमले को पहन लो, कदमों पे हाथ रख के कहता मौला मैंने अपनी पलक भी नहीं झपकी। कायदरा शेर याद कर। फकीर था, गरीब था, मिस्कीन था। ज़ोहराए शेर शबदा बपता और ये दिल। आगे कर असदुल्लाह गर रसद मददगार ये दिल। कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, कभी इधर जाता है। आ गया तीसरा दिन, मौलवियों की डेडलाइन। पीछे वाले आप सारे खुश हैं, जहां तक भी बैठे होना राजी रहना। बिल्कुल आखिरी बात है। वो हो वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा है, लेकिन बस आखिरी बात। शेर याद हो गया। मौला मुझे याद हो गया। मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम मुस्कुरा के कहते हैं मैं इसी दरख्त के नीचे खड़ा हूं, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। अल्लाह जाने वो क्या होगा जिसका अली इंतजार करे। हाय हाय, अल्लाह जाने अली ने उसे क्या अता कर दिया होगा कि अली कहते मैं तेरा इंतजार करूंगा, तुझे मेरी जरूरत पड़ेगी, मैं यही दरख्त के नीचे तेरा इंतजार कर रहा हूं। जा, हमने तुझे शाही अता की। कदमों पे हाथ लगाया, शाह ईरान के दरवाजे महल पे आया। बड़ी प्यारी बात है, इंशाअल्लाह बंदे हर बंदे का हाथ बुलंद होगा, सुभान अल्लाह की तस्बीह होगी। दक्कल बात किया, सिपाहियों ने खोला, देखा फकीर है, फटे कपड़े। क्यों आया है? बादशाह से मिलना है, शाह ईरान से मिलना है। क्या काम है? का शेर सुनाना है। तो अंदर गया तो मौलवियों का तो फिर कब्जा होता ना हर जगह पे। दरबार पे भी कब्जा मौलवियों का था। मौलवी दौड़ते हुए बाहर आ गए। कहते हैं क्या करने आए हो? फकीर का शेर। का हमें बता, हम तुझे 10,000 तुमान देते हैं।
नहीं, अब जब शाह बोला फिर मैं दुख लेके जाऊंगा यहाँ से। शाह जी जुमला बड़ा कीमती है, का 10-20 हजार तुमान हमसे ले ले, हमें बता दे। अली का नौकर मुस्कुरा के कहता है आज 10-20 नहीं सारी शाही लेने आया है। हाय हाय, तुझे पता ही नहीं मुझे भेजा किसने है। का आज 10-20 नहीं सारी। आगे से मौलवी धमकी दे के कहते तुम्हें कत्ल कर दूंगा। का तो फिर तुम्हें कौन बचाएगा, तुम्हारा भी तो आज आखिरी दिन है। अब वो कौन है, समझ लगी कि भाई ये सब कुछ समझता है। उसने कहा ठीक है ले जाओ। बादशाह को जाके पैगाम दिया, जल्दी करने लगो। बादशाह को पैगाम मिला, एक फकीर आया है, अरब फकीर है, यहां का नहीं, फारिस का नहीं, अरब का है। कहता शेर सुनाना है। नंगे पांव दौड़ता, साहिब किताब में लिखा नंगे पांव दौड़ता हुआ बादशाह शायरान आया। देख के कहता है तुम फकीर मुझे शेर सुनाएगा। अब देखना अपने खुदा के लिए, यहां मुड़ के देखना जो खड़े हो, इधर को देखना किसी का हाथ नीचे तो नहीं रह जाता। का तू शेर बताएगा, तुझे किसने बताया, का जिसने तुझे सुनाया। हाय हाय, आप सलामत रहे, कोई हाथ अल्लाह के शुक्र नीचे नहीं है। आप सलामत रहे, आपकी जिंदगी हो। का मुझे उसी ने बताया जिसने तुझे। ओहो, मौला ने कदमों पे हाथ रख के कहता है सुना, क्या पहले वादा याद है? क्या वादा याद है? आदि छाई, लाओ कागज कलम, लिखी, ये ले दस्तखत कर दिए, शेर सुना, कागज ले, आदि छाई तेरी। उसने कहा पहला शेर तू सुना। जोहराए शेर शब्द आप बताओ रिये दिल। आगे से मलंग फकीर कहता है असदुल्लाह गल रसद बमदद गाओ रिये दिल। लो जी अगले जुमले पे अब किसी का हाथ नहीं दे रहा तो मेरा 1 घंटा और 5 मिनट पढ़ने का फायदा क्या है। कदमों पे हाथ रख के शायरान कहता है आदि शाही तुझे दे दी, आदि बाकी भी ले, एक दफा अली की ज़ियारत करा। देखिए आप हर जुमले पे आप दाद दे रहे हैं और हर पूरा मुकम्मल मजमा आखिरी बंदे तक हर कोई दाद दे रहा है, लेकिन ये जुमला उससे भी ज्यादा वजनी है। ये सारी दाद एक तरफ और ये जुमला एक तरफ है। का जल्दी कर, आधी शाही भी ले। मुस्कुरा के कहता है वादा तो सारी शाही का था, चल पूरा कर देते हैं। हाय हाय, अली ने वादा सारी शाही का किया है। काली कहाँ है, का बस जहां भी है, का मुझे लेके जा आदि शाही, कागज कलम लाके आदि शाही लिख के कहता ये पकड़ अली की ज़ियारत करा। इतना कहना था शाहिरान के दरबार में, अली का फकीर खड़े होके कहता रख मेरे हाथ में हाथ। हाय हाय, आंखें बंद कर, खोली तो अली के सामने खड़ा। नहीं अभी 2-4 बंदों में हाथ नीचे है। हाय हाय, जैसे ही मेरे मौला ने आपको बोला जिंदगी दे दे, वो खुश होकर सुन रहे हैं। जैसे ही मौला अली के सामने पहुंचा ना शायरान को लेके, मेरे मौला ने शायरान से कुछ नहीं कहा, अपने फकीर के कंधे पे हाथ मार के कहा अभी से शुरू हो गया है। हाय 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 हाय, आप सलामत रहे, आप सलामत रहे। भाईजान बिल्कुल आखिरी जुमला फजाइल का, इसी पे तमाम करने लगा। राजी रहना, जिंदगी नहीं फिर मुलाकातें होगी। शायरान ने मौला की ज़ियारत की, शाही लिख दी, खुद वजीर अब वो फकीर। सरकार फरमाते हमारी विलायत कायम करके तो दे। हाय हाय, हसद नहीं, हसद से कुछ नहीं मिलता है, जिसे मौला ने दिया कोई तो वजह है जो मौला अता कर रहा है। सारा काम करने के बाद ना बस आखिरी जुमला है। वाकया बहुत लंबा था, आगे इसके आगे भी बातें थी लेकिन वो करनी नहीं, क्योंकि शॉर्ट एंड शार्प आखिरी जुमला पढ़ते हुए मुझे घंटे से भी शादी ज्यादा हो गया है। जाने लगा ना, अब वो बादशाह था फकीर, शाह ईरान।
शाह ईरान ने अपना ताज उतार के फकीर के सर पे रखा। जब ताज आया ना तो मौला के ना कदमों पे हाथ रख के कहता है, मौला अब मैं बादशाह हूं, कोई हुक्म। अल्लाह करे ये मिन्नत है, घंटे 5 मिनट के बाद कोई हाथ नीचे ना रहे। जैसे करबला आज भी किसी होर का इंतजार कर रही है ना, कदमों पे हाथ रख के कहता है, मौला अब शाह ईरान हूं, कोई हुक्म। अली मुस्कुरा के कहता है, इंतजार करना, हम एक और फकीर भेजेंगे। हाय अल्लाह सलामत रहे, हर वो बंदा सलामत रहे जिसने माशाअल्लाह या सुबहान अल्लाह की तस्बीह पढ़ी है। जो कायनात में शाहियां बांटता रहा उसी का बेटा हुसैन। हाय हाय करबला में कफन को भी तरसता रहा। मौला हाय कबूल फरमाए। शबीह ज़ुलजना की बरामदगी है। हाय हाय सलाम, इमाम ज़माना कहते हैं सलाम हो मेरा उस जद पे जिसके जिस्म में कोई जगह ऐसी न थी जहां तीर न लगा। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। हाय इतनी करना कि अली की बेटियां राजी हो जाए। जब तन्हा रह गया ना ज़हरा का लाल, अली अकबर भी शहीद हो गए, कासिम भी करबला में बिखर गए हैं, अब्बास के बाजू भी राह खुदा में कलम हो गए हैं। तन्हा रह गया ना ज़हरा का लाल, दस्ताए तलवार पे माथा रख के हुसैन ने रो के कहा, हल मिन्ना सरे या सोना। अजरकुम अल्लाह। है कोई कि जो मुझ गरीब की मदद करे? हाय हाय उलमाए मकातल लिखते हैं, अरब के दस्तूर के मुताबिक इमाम आखिरी सलाम करने खैमे के दर पे आए हैं ना, अब हाय कर देना। जैसे ही इमाम खैमे के दर पे आए, सैयदादियों ने पत्थरों से मातम किया, रो के कहा, अस्सलामु अलैके या ज़ैनब। नाम लेके सलाम जब किया ना, अस्सलामु अलैके या ज़ैनब व या उम्मा कुलसूम व या उम्मा रबा। हमीद इब्न मुस्लिम कहता है, एक नाम हुसैन लेते हैं हिजकियों से रोते हैं। क्या? अस्सलामु अलैके या सकीना बिन्तुल हुसैन। हाय हाय अलैकुन्ना मिन्नी सलाम। और मौला हाय कबूल करे। रो के कहा, सकीना मेरा आखिरी सलाम। अजरकुम अल्लाह। इधर आखिरी सलाम पहुंचाया ना, सैयदादियों ने रोना शुरू किया है। आलिया ने, शाम वाली आलिया ने कहा, फिजा जरा हुसैन को वो खैमे में आना। खैमे में आए ना हुसैन, सैयदादियों ने लिपट लिपट के रो रो के कहना शुरू किया, हुसैन किसके आसरे छोड़े जा रहा हो? कोई बीबी कहती मेरा अकबर मारा गया है, कोई कहती मेरा अब्बास मारा गया, कोई कहता मेरा कासिम मारा गया। हाय जरूर करना, एक बीबी है जो नहीं कहती मेरे ओनो मोहम्मद भी मारे गए। अल्लाह जाने कैसी वफा की है मेरी शाम वाली आलिया ने। अज़ादारों, आप दुनियादार, हम भी दुनियादार, कभी गौर करके देखना, अल्लाह ने 3-4 साल की बेटी दी हो ना, बाप कहीं सफर पे जाने लगे ना, घर से बाहर जाने लगे ना, बेटी आके बाबा से लिपट के कहती है, बाबा मैं भी साथ जाऊंगी, बाबा मुझे भी साथ ले जाओ। कभी कहती है माँ मुझे मारेगी, कभी कहती है भाई मुझे मारेगा। बंदा शिया होगा तो हाय जरूर करेगा। इमाम खैमे से निकलने लगते हैं, खुदाए सुखन कहते हैं, कभी सकीना करीब आ जाती थी, बाबा मुझे साथ लेके जाओ। कभी आकाजादी शाम वाली आके कहती, हुसैन किसके आसरे छोड़े जा रहा। कभी लाहौर वाली आकाजादी कहती, हुसैन किसके आसरे। खुदाए सुखन कहते हैं, खैमे का दर उठता था, गिर जाता था। खुदाए सुखन ने कहा, शबीर बरामद हुए वो खैमा के दर से। हाय हाय, जैसे निकलता है जनाजा किसी घर से, अल्लाह न करे किसी घर में कोई जवान मौत हो जाए। आपने देखा होगा ना, जब रिश्तेदार जनाजा उठाने जाते हैं ना,
जवान बहन हो या बेटी हो ना, चारपाई पकड़ पकड़ के कहती हो कहाँ लेके जा रहे हो, मेरा इसके सिवा कोई नहीं है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। बहनें रोती रही, बेटी रोती रही। हुसैन खैमे के दर से बाहर आए ना, अल्लाह जाने क्या याद आया मेरी आकाजादी जनाबे सकीना को। बंदा शिया हो, हाय ना करे, हो ही नहीं सकता। आगे ना बाबा की टांगों से लिपट के रोके का, बाबा मेरा दिल बैठा जा रहा है, मुझे भी साथ लेके जाओ। हुसैन कहते सकीना मेरे सजदे का वक्त हो रहा है, तो बाबा तेरे बगैर तेरी बेटी जिंदा कैसे रहेगी। अल्लाह जाने हुसैन कितना गरीब हो गया मेरा मौला। हाथ बुलंद करके कहा पालने वाले मेरी बेटी पे नींद को तारी कर दे। अब हाय करो ना यार, हाथ अभी हुसैन के नीचे ना आए थे कि हुसैन की गरीब बेटी सो गई है। पूछो मुर्तजा कब उठी है हुसैन की बेटी। बंदा शिया है तो उसकी हाय जरूर निकलेगी जब ज़हरा का लाल ज़ीन से जमीन पे आया। हाय हाय, और जब ज़हरा का लाल ज़ीन से जमीन पे आया ना, बीबी ज़ैनब ने जमीन करबला से पूछा हुसैन आया है। करबला की जमीन में ज़लज़ला आया, अमर की बेटी हुसैन नहीं आया। ना हुसैन ज़मीन पे है, ना हुसैन जमीन पे है। कहाँ है? उलमा कहते हैं इतने लंबे लंबे तीर हुसैन के जिस्म में लगे, काफी देर हुसैन तीरों के बल रहे हैं। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मौला हाय कबूल करे। अल्हम्दुलिल्लाह, बस राजी हो सबसे, हर एक ने हाय कर दी है। अदाकारो ज़हरा का लाल ज़ीन से जमीन पे आया ना, आकाज़ा की सकीना की आंख खुली। कपूफी अम्मा मेरा बाबा कहाँ है, मेरा बाबा कहाँ है। का ज़मीन से गिर गया है। जो औलाद वाले बैठे हो हाय जरूर कर देना। अदादारो जनाबे आलिया सकीना दौड़ती हुई खैमे से बाहर आई ना, क्या मंजर देखा। 9 लाख की फौज है, बाबा नजर नहीं आ रहा। अब शिया मर क्यों नहीं जाते हैं, रोते इसलिए है। बीबी ने जिससे हुसैन का पूछा है, किसी ने तमाचा मारा है, हाय हाय, किसी ने धक्का दिया है। जिसे कुछ ना मिलाना उसने करबला की गर्म रेत लेके। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मौला तुम्हारी हाय कबूल फरमाओ, मौला इन आवाजों पे रहे फरमाओ। अदादारो आईना अपने बाबा की गर्दन पे गर्दन रखी है। हाय हाय, और मेरा नमाजी बाबा इस जुमले पे हाय करना, और मेरा किसी को कुछ न कहने वाला बाबा। मैं उस बंदे को साजिशी ही नहीं मानता जिसके इस जुमले पे हाय ना निकले। आलिया बाबा की गर्दन पे मुंह रख के कहते बाबा हुसैन, बाबा मुझे ये तो बताओ मुसलमान तुझे मारते क्यों है। पता है हुसैन ने सर सजदे में रख के क्या जवाब दिया, सकीना मेरा जुर्म ये है मैं बतूल का बेटा हूँ, मेरा जुर्म ये है मैं अली का बेटा हूँ। अदादारो जिसे मौला ने बेटी दी है खुशकिस्मत है, मौला मुकद्दर नसीब अच्छे करे। क्यों मेरे मौला ने इसी जुमले पे इसी मौके पे जुमला कहा था जब बाबा के पास बैठी है ना जनाबे आलिया सकीना, शिमर मलून खंजर घुमाता हुआ आया है। हाय 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 हाय, जब देखा ना कोई 4 साल की बच्ची है जो बाबा बाबा करके रो रही है, अल्लाह लानत करे। शिमर मलून कहता है हुसैन बेटी को तूने बुलाया है, और मौला तुम्हारी बेटियों के नसीब मुकद्दर अच्छे करे। हुसैन मौला का सर सजदे में है, लोग कहते हैं अल्लाह लानत करे। बाप मर रहा हो बेटियां बुलाई नहीं जाती है, ये मैयतों की वारिस होती है, ये खुद ही आ जाती है। अब शिया बन के हाय कर देना, अपनी बेटी को फेंक कर सकीना बेटी चली जा, ये बड़ा शकी है, बाबे का सजदा देखती रही है। शिया हाय जरूर करना। अदादारो इस मलून ने जनाबे सकीना की जुल्फों में हाथ डाल के जो पहला तमाचा मारा है, मुंह सकीना का दादी का फुरात की तरफ फैल गया और रोके कहा चचा मेरी मदद
رسول اللہ. ہم مولا ہے قبول کرے. بس آخری جملہ پڑھنے لگا میانا مولا کی شبیہ کو جملے پہ ادادارو ضرب 13 چلی ہے. میں کتاب میں نہ پڑھا ہوں, میں مولا کا مجرم ہوں, مسائل میں غلط بیانی نہیں ہوتی. 13 ضربیں کیوں چلی ہے؟ خنجر کون تھا؟ ہرگز نہیں. تاریخ میں ملتا ہے ساری رات ملعون خنجر تیز کرتا رہا ہے. آیت اللہ بہجر سے کسی نے پوچھا تھا کہ پھر یہ 13 ضربیں کیوں چلی؟ بندہ شیعہ ہوگا ہائے کر کے یا حسین ضرور کرے گا. کہ پھر 13 ضربیں کیوں چلی؟ کہ خنجر تیز تھا, ظالم خنجر چلانے لگتا تھا, کوئی کالے برقے